جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بٹی، اور آپ کو سٹارز اینڈ اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی ان آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنی کتاب کا ایک بڑا ہی اہم حصہ شروع کرنا ہے، اور وہ ہے حصہ غزل۔ اور پہلی غزل جو ہے وہ رئیس المتغزلین حضرت موہانی کی غزل ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم ان کی اس غزل کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے حضرت موہانی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موہانی، ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور حضرت تخلص کرتے تھے۔ یہ 1875 میں یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے جانے لگے۔ چونکہ یہ موہان میں پیدا ہوئے تھے، اس مناسبت سے ان کو موہانی کہا جاتا ہے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلّہ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کے مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من جو گندم تھی وہ دستی چکی پر ان کو پیسنا پڑتی تھی۔ حضرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے کہ جب وہ قید میں تھے اور ان سے 1 من گندم ہاتھ والی چکی پر پسوائی جاتی تھی، تو تب حضرت موہانی کہتے ہیں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حضرت موہانی جو ہیں یہ رئیس المتغزلین مشہور ہیں۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حضرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی تھی، اور ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حضرت موہانی اور انتخاب اردو معلّہ، یہ ان کی کتب ہیں۔ اور تو جی ایک مرتبہ ان کو حضرت موہانی کے جو تعارف ہے اس کو ہم سوال اور جواب کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کا جو ہے تصور وہ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے۔ حضرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت موہانی کا تخلص کیا تھا؟ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت موہانی کو موہانی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت موہانی نے بی اے کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ حضرت موہانی کون سا رسالہ نکالتے رہے جسے انگریز حکومت نے بند کر دیا؟ وہ شعر تحریر کیجئے جو حضرت موہانی نے قید و بند کی صعوبتوں میں تحریر کیا، جو ان کی بڑی یادگار ہے۔ آپ مجلس قانون ساز کے رکن کب منتخب ہوئے اور کس کے ٹکٹ پہ ہوئے؟ حضرت موہانی بنیادی طور پر کیسے شاعر ہیں؟
उनकी गज़ल में कौन सी नुमायां खसूसियात हैं? हसरत मोहानी का लक़ब क्या है? हसरत मोहानी ने किस किताब की शरह लिखी? हसरत मोहानी की चंद तसानीफ के नाम लिखिए। ये रहा हसरत मोहानी का तारुफ, और अब हम इसकी गज़ल के पहले 2 अशआर पर आज इक्तिफा करेंगे और बाकिया 3 अशआर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में, अगले सबक में देखेंगे। तो चलते हैं हसरत मोहानी की गज़ल के पहले शेर की तरफ। हसरत मोहानी कहते हैं, मुसीबत भी राहत फजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। आशिक को महबूब की जानिब से मिलने वाली हर तकलीफ खुशी बढ़ाने वाली होती है। मुसीबत, दुख, राहत, आराम, फजा बढ़ाने वाली, तेरी तेरी आरज़ू, ख्वाहिश, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाली। आशिक कहता है कि मुझको महबूब की जानिब से मिलने वाली हर तकलीफ मेरी तकलीफ का सबब नहीं बल्कि खुशी बढ़ाने वाली है, और दिल में महबूब की चाहत का पैदा होना ये मेरे लिए रहनुमाई और एक रहनुमा के तौर पर साबित हुआ है कि मुझे अपनी जिंदगी की सम्मत का तयन हो चुका है कि मैंने किस तरफ जाना है। अमूमी तौर पर देखा यह गया है, आम लोगों का ख्याल यह है कि रास्ता इश्क मोहब्बत बड़ा दुश्वार, गुजार और कठिन रास्ता है। यहाँ कदम कदम पर आशिकों को आजमाया जाता है और मुख्तलिफ औकात में उनके इम्तिहान मोहब्बत लिए जाते हैं। ये इम्तिहानात मोहब्बत और ये आजमाना और तकालीफ में से गुजरना एक आम शख्स की निगाह में ये बहुत तकलीफ दे अमर है, मगर एक आशिक का कहना यह है कि मुझे महबूब के रास्ते में मिलने वाली तकलीफ मेरे लिए नुकसान और तकलीफ का बायस नहीं बल्कि वो मेरे लिए बायस राहत है। जिस कदर मुझे महबूब की मोहब्बत में सताया जाता है, मैं उस कदर आराम और सुकून जो है वो महसूस करता हूँ। जिस कदर मुझे मजालिम में से गुजारा जाता है, मैं उस कदर महबूब की मोहब्बत पे बहुत खुश होता हूँ। अलगर्ज उसकी चाहत और उसकी मोहब्बत में गोया आशिक जो है वो महबूब की मोहब्बत में हर दुख को सुख समझकर बर्दाश्त कर रहा होता है। तबीयत ही दर्द आशना हो गई, तबीयत ही दर्द आशना हो गई, दवा का न करना दवा हो गया, दवा का न करना दवा हो गया। उनकी तबीयतें दर्द आशना हो जाती हैं, फिर मुसीबतें उन्हें मुसीबतें नहीं लगती। आप तारीख के औराक पलट कर देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मुस्तगरक होकर, मुनहमिक होकर खवातीन अपनी हाथों पर अपनी ही छुरियां चला बैठती हैं, तकलीफ का एहसास नहीं होता। वो मुसीबत उनके लिए दुख का बायस नहीं सुख का बायस बनती है। इसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर को तरह तरह के मसाइब आलाम में से गुजारा जाता है, मगर वो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर दूर निकल चुके हैं कि उनकी मोहब्बत में वो उनको ये तकलीफ महसूस नहीं होती। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए, गरम और दहकते कोयलों पर उनको लिटाया जाता है, मगर उनके लिए ये मुसीबत राहत फजा बन जाती है और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरजू उनके लिए रहनुमा बन जाती है। तो यहाँ हसरत मोहानी का नुक्ता नज़र जो है ये आम मोहब्बत के लिए भी है और आप इसको ख़ास मोहब्बत के लिए भी कह सकते हैं। महबूब के इश्क को अपने लिए रहबर और रहनुमा करार दिया जा रहा है, और ये एक हकीकत है कि जब आशिक
किसी से सच्चा इश्क कर लेता है, किसी से सच्ची मोहब्बत कर लेता है, तो फिर उस महबूब की आरज़ू ही उसकी ज़िंदगी की सम्मत का तयन करती है कि उसने किस रास्ते पर चलना है। फिर जब वो इश्क के रास्ते को पसंद कर लेता है, तो फिर उसके लिए वही महबूब का ही जो रास्ता है, उसके लिए वो रास्ता बहुत ही सकून देह रास्ता बन जाता है। शायद इसलिए किसी ने कहा कि सारे उशाक के लिए अंजुम, सारे उशाक के लिए अंजुम, रहबरो रहनुमा तेरी ख्वाहिश, रहबरो रहनुमा तेरी ख्वाहिश। इस शेर में दो बातें हुई कि रास्ते इश्क में जितने मसाइब आते हैं, आशिक उसको सकून वाला महसूस करता है, और आशिक के लिए महबूब की चाहत उसकी जिंदगी के लिए रहनुमा साबित होती है। दूसरा शेर है, हसरत मोहानी कहते हैं, ये वो रास्ता है दियारे वफा का, जहां बाद सर सर सबा हो गई। ये इसमें इशारा करीब के लिए, रास्ता रस्ता, दियारे वफा, वफा का मुल्क, मुरक्कब इजाफी, जहां इसम ज़र्फ़े मकां, बादे सर सर, ठंडी, बादे सर सर कहते हैं गर्म हवाओं को, ये मुरक्कब तौसीफी है, सबा ठंडी हवा, हो गई है माजी करीब। हसरत मोहानी कहते हैं कि वफा के देश में नक्शे महबूब पर चलना हर आशिक की दिली मुराद होती है, और इस मुकाम पर तेज और गर्म हवाएं ठंडी और राहत वाली हो जाती हैं। उसको महबूब के नक्शे कदम पर चलते हुए कोई भी तेज और गर्म हवा महसूस नहीं होती। उसको हर रास्ता बहुत ही उसके लिए पुरसकून लगता है। महबूब की अदाओं को अपनाना आशिक के लिए नागुज़ीर होता है, इसलिए वो इस नागुज़ीरियत को मद्देनजर रखते हुए उस रास्ते इश्क व मोहब्बत पर चलते हुए अपने महबूब के मोहब्बत को पाने वाले रास्ते में आने वाली तकालीफ को तकलीफ नहीं कहता, बल्कि यही तो उसको मोहब्बत का मज़ा देती हैं। यही तकलीफ़ें तो उस आशिक को अपने महबूब के करीब तरीन कर देती हैं। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। फिर जब कोई शख्स ये रास्ते मोहब्बत से आशना हो जाता है, इस रास्ते महबूब और महबूब की अदाओं से आशनाई हासिल कर लेता है, फिर उस पर मोहब्बत के राज उठते हैं। फिर उस पर जो हिजाबात और पर्दे पड़े हुए थे असल हकीकत मोहब्बत पर, वो खुलने लग जाते हैं और आशिक उसमें सर सर करता गुजरता चला जाता है। इश्क का रास्ता बड़ा कठिन और दुश्वार गुजार होता है। जमाने का हर थपेड़ा आशिक को राहत देता है। उसके लिए इस रास्ते पर चलने वाली गर्म हवाओं, बाद सर सर से मुराद मुश्किलात है। गर्म हवाएं उसे गर्म नहीं लगती, बल्कि सुबह की ठंडी हवाओं की तरह उसे ठंडी लगती हैं और उसके जिगर को तकवीयत और ठंडक पहुंचाती हैं, इसलिए कि उस मुश्किल के बाद उसके लिए महबूब का चेहरा उसकी जिंदगी के सभी दुखों को सुखों में बदलने वाला होता है। वो मजा दिया तड़पने के ये आरजू है यारब, वो मजा दिया तड़पने के ये आरजू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। वो आशिक जो रास्ते इश्क में महबूब के लिए बर्दाश्त की जाने वाली तकालीफ के बाद जब वो हकीकत हाल से आशना होता है, तो फिर वो दुआएं मांगता है कि मुझे इसी तरह मोहब्बत भरे रास्ते में आजमाया जाता रहे और मैं इसी तरह इस रास्ते मोहब्बत में आजमाइशों में से गुजरता रहूं। जी, ये रहा हमारा आज का सबक। आपने होमवर्क के तौर पर शायर के तारुफ में से 10 मुख्तसर सवालात बनाने हैं। आप तमाम अहबाब ने दूसरे शेर की तशरीह लिख कर दिखानी है। ये आपका होमवर्क है।
تو آپ نے آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کی. آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ.